Hello students, welcome to Sananas Engineering Academy. In today's video we are going to discuss about the Fourier transform. आज के वीडियो में हम Fourier transform के बारे में डिस्कस करेंगे. We are going to talk about the introduction of Fourier transform. Okay, so this lecture will be very important. आगे और 2-3 वीडियोस है, right? So before watching that video, this one is most important. यहाँ पर हम formulas discuss करेंगे, यहाँ पर हम integration solve करेंगे, and we are going to see the trigonometric formulas that is going to require. Okay, so without wasting much time, let us deeply dive into basics of Fourier transform. See students, in Fourier transform what we are going to do is we are going to convert what? We are going to convert time into frequency. Okay, so जो time का graph रहेगा, that time graph will get converted into what? Will get converted into frequency. So I will write here time. So what we are going to do, we are going to convert time. This time is denoted by small f. ये याद रखो. So whenever in numerical small f is been given, its meaning will be what? Its meaning will be time. Okay. So what we are going to do, we are going to convert this time into frequency. हम किस में convert करेंगे? हम frequency में convert करेंगे. So time का जो graph है, that I am going to convert into the frequency. So I will write here frequency. Just wait for a minute. Yes, I will write here frequency. So frequency is denoted by capital F, students. Okay, perfect. Okay, so if I want to convert time graph into frequency graph, अगर हमें time graph को frequency graph में convert करना है, we are going to use transform. So उसमें Laplace transform, we have Fourier transform, we have Z transform also. In today's video we are going to study about which one? We are going to study about the Fourier transform. ठीक है, but in the same way अगर आपको frequency, if you want to convert the frequency into what, students? Frequency into अगर आपको time convert करना है, so here we are going to use inverse Fourier transform, IFT. So ये याद रखो, अगर आपको time graph frequency graph में convert करना है, we are going to use Fourier transform, and then frequency graph अगर time graph में convert करना है, then we are going to use inverse Fourier transform. Perfect. Now, so time graph में एक component है, that component is u here. Okay, और frequency में एक component है, that is lambda. Okay, so what we are going to do, we are going to convert f of u to what, students? Capital F of lambda. समझ रहे हो? मतलब टाइम का जो कंपोनेंट रहेगा वो हम किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे. बाय यूजिंग विच ट्रांसफॉर्म? बाय यूजिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म. परफेक्ट. इन द सेम वे अगर हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज करना है बट फ्रीक्वेंसी टू टाइम कन्वर्जन में, बट व्हाट हैपेंस, देखो भाई, u का लैम्डा में कन्वर्जन तो हो जाएगा बट लैम्डा का u में कन्वर्जन नहीं होगा. देयर विल बी सम लैग. सो एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा ऐड होता है, दैट विल बी व्हाट, स्टूडेंट्स? दैट विल बी f of x. सो अगर आपको फ्रीक्वेंसी का कन्वर्जन टाइम में करना है, f of लैम्डा को f of x में कन्वर्ट करना है, देन दैट process will be called as inverse Fourier transform. So in Fourier transform we have these two procedure, we have the two methods. एक method है Fourier transform. The first part that we have to study is what, students? Fourier transform. और जो second part है that is what? That is inverse Fourier transform. वो है inverse Fourier transform. Perfect. ये सेकेंड पार्ट है जो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है. सो f of u to f of lambda फूरियर ट्रांसफॉर्म, f of lambda to f of x inverse Fourier transform. So how many components you are going to see in Fourier transform? तीन components, एक u दिखेगा, एक lambda दिखेगा और एक x दिखेगा. So whenever in numerical x is been given, sin या cos के साथ अगर x हुआ, so it is a numerical related to what? It is a numerical related to inverse Fourier transform. Are you getting this? It is numerical related to inverse Fourier transform. अगर u रहेगा,
ओके मीन्स इसका अगर डेरिवेटिव डी यू है, इसका डेरिवेटिव डी लैम्डा है और इसका डेरिवेटिव डी एक्स है. सो टोटल फूरियर ट्रांसफॉर्म में दिस थ्री डेरिवेटिव्स वी आर गोइंग टू सी. Perfect. I hope that you are understanding this basic of Fourier transform. So now let us move on to the next part, that is the formulas. Okay, so formulas तो सबसे important है students. Okay, so there are various formulas referred by various authors. जो simple one है मैं आपके साथ वही discuss करने वाला हूँ. ओके सो जो बेसिक फूरियर ट्रांसफॉर्म रहता है स्टूडेंट्स, द बेसिक फूरियर ट्रांसफॉर्म इट स्टार्ट्स विथ इंफिनिटी. ओके तो उसका जो लिमिट है वो है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है स्टूडेंट्स. हियर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फूरियर ट्रांसफॉर्म. देखो भाई बेसिक फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करना है. बेसिक फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है मींस व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड हियर एफ ऑफ लैम्डा. एफ ऑफ लैम्डा मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म. ओके फाइंड करना है. सो उसका जो फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला देखो भाई क्या है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. यहां पर लिखो एफ ऑफ यू, एफ ऑफ यू का यहां पर डेरिवेटिव लिख दो, दैट विल बी डी यू एंड दिस विल बी एन इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज ई रेज टू माइनस आई लैम्डा यू. ये बेसिक फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला है ट्रांसफॉर्म के ऊपर. ओके फॉर योर ट्रांसफॉर्म. बट अगर आपको इनवर्स ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला फाइंड करना है सो सिर्फ एल आर एच एस में यहां पर क्या ऐड करो, 1/2 पाई. चलो ठीक है, इंफिनिटी तो सेम ही रहेगा स्टूडेंट्स, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. ओके नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज हियर एफ ऑफ लैम्डा. एफ ऑफ लैम्डा अगर यूज किया तो यहां पर डी ऑफ लैम्डा लिखो and this is e raised to minus I lambda x. देखो this formula no need to learn, ये formula learn करने की जरूरत नहीं है. if you are solving numerical no need to learn this formula. formula कौन सा learn करना है that I will tell you. okay so generally students this Fourier transform is basically divided into two parts. दो parts में divide किया हुआ है ये फूरियर ट्रांसफॉर्म. द फर्स्ट पार्ट इज द कोसाइन ट्रांसफॉर्म और जो सेकंड पार्ट है वो है साइन ट्रांसफॉर्म. मींस फर्स्ट ट्रांसफॉर्म ये है साइन और सेकंड जो रहेगा दैट विल बी ए कोसाइन ट्रांसफॉर्म. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो अगर आपको फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है मींस इफ यू वांट टू फाइंड आउट fs of lambda, see how you are going to find. अगर आपको fs of lambda find करना है what you will do, सबसे पहले इंटीग्रेशन लिखो 0 to infinity, 0 to infinity लिखो. you are going to operate on f of u, f of u लिखने के बाद यहाँ पर du लिखो. okay now we are talking about sine, so write down here what students, write down here sin lambda u. Are you getting this point? f of u यहाँ पर है, f of u का डेरिवेटिव du लिख लो and here will be what, here will be sin lambda u. perfect perfect. in the same way cosine का क्या रहेगा, इंटरप्रेट करो fc of lambda. यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर 0 लिखो, यहाँ पर infinity. okay same way f of u and same way here d of u will be there, but instead of sine what will be asked, instead of sine what will be there, क्या रहेगा, cos lambda u. are you getting this point? देखो भाई f of u du तो है ही, but for cosine transform what you are going to use, you are going to use cos lambda u. परफेक्ट, ये हो गया फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला. देखो भाई कितना इजी है, कंपैरिजन वाइज स्टडी करो, डिफिकल्टी नहीं होगा. ओके परफेक्ट. इन द सेम वे लेट अस सी फॉर द इनवर्स. इनवर्स में करना क्या है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज इन इनवर्स मींस हियर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f of x. आपको एक्चुअली फाइंड करना है f of x. हियर यू आर गोइंग टू राइट 2 by pi. ओके लिमिट्स तो सेम ही रहेगा 0 to infinity. okay so now you are going to use your sine transform, correct है. so sine transform लिखो fs of lambda. अगर लैम्डा है तो यहाँ पर लिखो d of lambda. देखो भाई इधर अगर f of u तो यहाँ पे du लिखे तो सेम fs lambda रहेगा तो यहाँ पर भी d of lambda लिख लो. here you are going to write down as a sign related is there, so inverse के लिए आपको मैंने बताया that inverse के लिए हम use करते हैं x.
So sin lambda x d lambda, this is the formula. This is the formula guys. In the same way इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला बताइए. इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का सेम लिखना है 2 by pi. Here you will write 0 to infinity. Here it is cosine. So यहाँ पर लिखो fc of lambda. Lambda है so यहाँ पर लिखो d of lambda. Are you understanding? So now it is cosine. So यहाँ पर लिखो cos lambda x. यहाँ पर लिखो cos lambda x. I hope you are understanding this. Perfect. So this is the formula. You can take a screenshot of this. तो सिंपल लॉजिक इतना रखना है दैट जब ट्रांसफॉर्म रहेगा f of u du, यहां पर लिखो, वेट ए मिनट, यस, f of u du लिखो, साइन रहेगा तो साइन लैम्डा u, कोसाइन रहेगा f of u du लिखो और यहां पर cos of lambda u. This will help you students, this will help you understanding and remembering the formula. ओके कुछ ना कुछ लॉजिक लगाओ और फॉर्मूला लर्न करो. I hope that you are understanding. Fine. So this was the basic formula that is been required for Fourier transform. Perfect. Let us move on to the next part. Yes. So जब भी हम Fourier transform का न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, this basic is very very important. साइन जीरो जो रहेगा स्टूडेंट, साइन जीरो की वैल्यू क्या है? जीरो. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट्स कंफ्यूज्ड हियर, सो लिख लो भाई, साइन जीरो जीरो रहेगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1 रहेगी. करेक्ट. साइन जीरो जीरो है, कॉस जीरो की वैल्यू 1, ई रेज टू जीरो रहेगा 1, एनीथिंग रेज टू जीरो वी नो दैट कांस्टेंट इट इज ऑलवेज 1, और ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी अगर रहेगा दैट विल बी 0. साइन पाई का वैल्यू 0 है और 2 पाई का भी 0 ही वैल्यू है. ओके. सो इन फूरियर ट्रांसफॉर्म दिस इज, यस, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. बट फूरियर ट्रांसफॉर्म में आपको मैंने एक बात बताया दैट फूरियर ट्रांसफॉर्म दैट इज ft इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दैट पार्ट इज कोसाइन ट्रांसफॉर्म, दैट इज फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और जो सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स दैट इज फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म. एक कोसाइन ट्रांसफॉर्म है और एक साइन ट्रांसफॉर्म है. सो व्हेन टू यूज कॉस, व्हेन टू यूज साइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभार न्यूमेरिकल में दिया रहेगा दैट यूज फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, यूज फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, बट अगर समझो न्यूमेरिकल में दिया हुआ नहीं है एंड यू हैव टू इंटरप्रेट, यू हैव टू कैलकुलेट हाउ यू विल डू. ओके, हाउ यू आर गोइंग टू डू, लेट अस सी. सो अगर समझो स्टूडेंट्स इन न्यूमेरिकल वी हैव एक्स स्क्वायर या मॉड ऑफ एक्स या कांस्टेंट रहा. सी एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स मीन्स व्हाट, जिसका आंसर पॉजिटिव आया. देखो एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर क्या हुआ 4. सो इफ एनी आंसर इज पॉजिटिव वो हो गया इवन फंक्शन, दैट इज इवन फंक्शन गाइज. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? वो हो गया इवन फंक्शन. सो एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स कांस्टेंट अगर ये न्यूमेरिकल में रहे, अगर ये न्यूमेरिकल में रहे दैट इज इवन फंक्शन. बट ऑड फंक्शन का क्या है? देखो भाई प्लस नहीं, वहां पर नेगेटिव चाहिए, वहां पर माइनस चाहिए. सो इसलिए जब x और x क्यूब रहा तब ऑड फंक्शन यूज करते हैं. सो इवन फंक्शन यूज करते, इसका मीनिंग क्या हुआ दैट वी आर गोइंग टू यूज कोसाइन ट्रांसफॉर्म. सो व्हेनेवर x स्क्वायर मॉड ऑफ x इज देयर वी आर गोइंग टू यूज कॉस, और जब भी x और x क्यूब रहेगा स्टूडेंट्स we are going to use your what guys, we are going to use your sine transform. So सबसे पहले ये important है, ठीक है, जब भी दिया रहेगा यूजिंग फूरियर साइन, फूरियर कोसाइन, इट इज ओके, इट इज इजी मैन. बट जब भी दिया नहीं रहेगा सो you have to be well aware of it. जब x स्क्वायर मॉड ऑफ x कांस्टेंट दिया है भाई वो है cos रिलेटेड, cos ट्रांसफॉर्म यूज करो. x क्यूब दिया है जहां पर आंसर नेगेटिव आएगा, x की वैल्यू पुट की तो दैट विल बी ए साइन ट्रांसफॉर्म. ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आइडेंटिफिकेशन का तकलीफ गया दैट कोसाइन यूज करना है या साइन यूज करना है. परफेक्ट. नाउ फूरियर ट्रांसफॉर्म में स्टूडेंट्स टू टाइप्स के न्यूमेरिकल्स है, टू टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आर देयर. टाइप 1 का जो न्यूमेरिकल है, टाइप 1 का जो न्यूमेरिकल है इट इज रिलेटेड टू साइन, कॉस या फिर नंबर्स मतलब 0 1 2 3. और जो टाइप 2 है
जो टाइप 2 है स्टूडेंट्स, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू एक्सपोनेंशियल, ई रेज टू एक्स का exponential. Okay, so basically for all universities you have to do this sine cos and numbers, but yes, but if you are in SPPU एक क्वेश्चन तो फिक्स पूछा जाता है e raised to x के ऊपर, e raised to x ऊपर. so if you see the past question paper वहां पर भी पूछा गया है, but it's SPPU, you cannot say anything, you have to be prepared with all these types here. ठीक है, जब भी e रेज टू x का क्वेश्चन आएगा, जब भी टाइप 2 का क्वेश्चन आएगा, दिस फॉर्मूलेज विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है भाई फॉर्मूला, क्या है देखो, e रेज टू ax sin ऑफ bx, तो इसका फॉर्मूला e रेज टू ax a स्क्वायर b स्क्वायर. देखो यहाँ पर sin bx है, सो पहले sin bx लिखो, sin के बाद लिखो cos, sin के बाद लिखो cos, a और b है, सो यहाँ पर a यहाँ पर b, ठीक है, और बीच में माइनस का टर्म. e रेज टू एक्स cos bx का देखो, e a x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos bx है, सो यहाँ पर cos bx लिखो, cos bx के बाद यहाँ पे sin bx लिखो, एंड देन वी हैव a एंड b, सो फर्स्ट यू राइट डाउन a एंड सेकेंड यू राइट डाउन b हियर. ठीक है, सो व्हेन वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला स्टूडेंट्स फॉर टाइप 2, मतलब e रेज टू का अगर क्वेश्चन आया, देन वी आर गोइंग टू यूज देयर. ओके, परफेक्ट. सो ये था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जरूरी है टाइप 2 के लिए. ओके, नाउ इन फूरियर ट्रांसफॉर्म योर इंटीग्रेशन शुड बी परफेक्ट, इंटीग्रेशन शुड बी वेरी पिट पैट. Okay, so before going into the numerical, let us learn about integration. जो complicated integration है, हालांकि complicated integration नहीं पूछा जाता है, but then also we will try to solve it students. Perfect. So integration of sine, sine का integration क्या रहता है, minus cos x, cos का इंटीग्रेशन रहता है प्लस sin x. चलो ठीक है, ये तो सभी को आता है, बट थोड़ा सा भी ट्विस्ट करते हैं. sin 2x का इंटीग्रेशन देखो भाई, sin x का इंटीग्रेशन था माइनस cos x, तो sin 2x का क्या रहेगा, माइनस cos 2x, ऐसा लिख लो. sin 3x भी रहता तो आप क्या लिखते हैं, माइनस cos 3x ही लिखते, बट ऐसा कुछ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है नहीं है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी कि x के साथ कौन सी वैल्यू है, x के साथ 2 है, x के साथ कौन सी वैल्यू है, x के साथ 2 है, सो 2 को डिवाइड करना है. ये हो गया कॉम्पोजिट फंक्शन, ये हो गया कॉम्पोजिट फंक्शन, 2 के साथ डिवाइड करो. अगर आपको डेरिवेटिव पूछा जाता sin 2x का तो 2 मल्टीप्लाई होता, यहां पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा. परफेक्ट. cos 2x, cos 2x, cos 2x का फॉर्मूला बोलिए, cos 2x का फॉर्मूला, sin 2x. ओके, x के साथ क्या है, x के साथ 2 है, सो डिवाइड बाय 2. फाइन, परफेक्ट. सो ये तो x के टर्म में था, बट लेट अस नाउ अंडरस्टैंड इन द टर्म ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म. फूरियर ट्रांसफॉर्म के टर्म में ये कैसा रहेगा. सो फिफ्थ देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन लैम्डा यू. साइन का क्या है भाई बोलिए, साइन का है माइनस कॉस लैम्डा यू है ना, लिख लो लैम्डा यू. ये सब है विथ रिस्पेक्ट टू डी यू, ऑल दिस थिंग आर विथ रिस्पेक्ट टू डी यू डेरिवेटिव, और ये था डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू dx. ठीक है, u के साथ है, सो u के साथ कौन सा टर्म है, लैम्डा है, सो लैम्डा को डिवाइड करो. तो साइन लैम्डा u का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस कॉस लैम्डा u इंटू लैम्डा. आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ये बेसिक इंटीग्रेशन सबसे पहले फिक्स कर लो, ये बेसिक इंटीग्रेशन सबसे पहले तो फिक्स कर लो. फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos लैम्डा u, cos का इंटीग्रेशन क्या रहता है, प्लस sin लैम्डा u, और u के साथ क्या है, लैम्डा है, सो यहां पर लिख लो अपॉन लैम्डा. परफेक्ट. इन द सिमिलर वे सेवेंथ का आंसर बताइए, सेवेंथ का आंसर क्या रहेगा, sin इन ब्रैकेट लैम्डा माइनस 1 इंटू यू, साइन का रहता है माइनस कॉस, एज इट इज लिखो लैम्डा माइनस 1 इंटू यू अपॉन, यू के साथ कौन सा टर्म है, यू के साथ कौन सा टर्म है बोलिए, लैम्डा माइनस 1 का टर्म है. कौन सा टर्म है, लैम्डा माइनस 1 का टर्म है. सिमिलरली कॉस लैम्डा माइनस 1, यू का क्या रहेगा, कॉस का है साइन, बाकी के टर्म एज इट इज लिख लो लैम्डा माइनस 1 इंटू यू, यू के साथ है लैम्डा माइनस 1, सो लैम्डा माइनस 1 लिख लीजिए.
आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। सो ये था बेसिक इंटीग्रेशन, बट जनरली कभी कभार क्या पूछा जाता है, यूवी रूल इज ऑल्सो आ स्टूडेंट्स, यूवी रूल भी पूछा जाता है, ओके। सो so in that UV rule what we will do is we'll first of all see this, okay, and then we will see the next one। देखिए सो यूवी रूल क्या है, यूवी रूल है u एज इट इज लिखना है, v का डेरिवेटिव, ओके, u एज इट इज, ये एज इट इज v का, ओके, दिस इज योर इंटीग्रेशन, फिर से ये u का डेरिवेटिव लिखो और ये v1 का इंटीग्रेशन आएगा di, ये di करते रहो, फिर से इसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन, ओके, ये करते रहना है। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखना है, v का इंटीग्रेशन करिए, जो फर्स्ट टर्म है u का उसका डेरिवेटिव लिखो और v1 का फिर से इंटीग्रेशन करो, माइनस प्लस माइनस यू हैव टू डू इट, ठीक है। हाउ टू सॉल्व इट, लेट अस सी, u into cos lambda u, okay, and one more thing you have to understand that UV rule works on Lyot rule। Lyot rule means logarithmic, inverse, algebraic, trigonometric और exponential। so सबसे पहले u algebraic रहना चाहिए, फिर trigonometric, algebraic फिर trigonometric, ठीक है। so according to UV rule u as it is लिखो, v1 मतलब cos lambda u का इंटीग्रेशन, बोलिए, ठीक है, मैं सबसे पहले ऐसे लिखता हूं, cos lambda u का इंटीग्रेशन देखो क्या है, sin lambda u अपॉन lambda, ओके, सो आई विल राइट हियर cos lambda u का क्या है, sin lambda u अपॉन lambda, u के साथ lambda है, क्यों भाई u के साथ ही, क्यों, क्योंकि du है विथ रिस्पेक्ट टू u है, प्लस के बाद माइनस माइनस, ओके, अभी ये u का डेरिवेटिव निकालो, ये u का डेरिवेटिव निकालो, u का डेरिवेटिव कितना है, 1, जैसे x का डेरिवेटिव 1 रहता है, u का डेरिवेटिव भी 1 है, परफेक्ट। अभी इसका फिर से इंटीग्रेशन फाइंड करना पड़ेगा, ओके, इसका फिर से इंटीग्रेशन फाइंड करना पड़ेगा। सो साइन लैम्डा u का इंटीग्रेशन बताइए, साइन लैम्डा u का इंटीग्रेशन क्या है, साइन लैम्डा u का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस लैम्डा u अपॉन, ये लैम्डा तो ऑलरेडी है और u के साथ फिर से ये लैम्डा इधर मल्टीप्लाई कीजिए, समझा, नहीं, फिर से एक बार बताता हूं, ये u एज इट इज लिखो भाई, cos लैम्डा u का इंटीग्रेशन लो, क्या है cos लैम्डा u का इंटीग्रेशन, sin लैम्डा u अपॉन लैम्डा, माइनस ये u का डेरिवेटिव लो, क्या है u का डेरिवेटिव 1 है, सो 1 लिखो, sin लैम्डा u का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos लैम्डा u अपॉन लैम्डा, बट ऑलरेडी इसका लैम्डा है, परफेक्ट, प्लस ये 1 का फिर से डेरिवेटिव लो, 1 का डेरिवेटिव क्या रहता है स्टूडेंट्स, 0, मींस यू हैव टू स्टॉप द इक्वेशन टिल हियर, कब तक इक्वेशन करते रहना है, जब तक आपका आंसर 0 नहीं आता है तब तक करते रहना पड़ेगा। सो द लास्ट इक्वेशन, the last form is u sin of lambda u upon lambda, ये माइनस और ये माइनस हो गया, प्लस 1 इंटू मीन्स दिस विल बी cos lambda u upon lambda का स्क्वायर। I hope that you are understanding this problem, okay? So for Fourier transform again we will repeat, again भाई रिपीट करते हैं, Fourier transform के लिए क्या जरूरी है, ये बेसिक sin 0 0 e raised to 0 1 cos 0 1 e raised to minus infinity 0। Fourier transform दो टाइप में डिवाइड, एक Fourier cosine और एक Fourier sin transform, ओके, इवन फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करना है, कॉस फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करना है, इफ यू हैव एक्स स्क्वायर, इफ यू हैव मॉड ऑफ एक्स और इफ यू हैव एनी कांस्टेंट टर्म, ऑड फंक्शन कैसे फाइंड करना है, साइन फंक्शन कैसे फाइंड करना है, अगर आपके पास x रहेगा या फिर x क्यूब, देन यू हैव टू फाइंड आउट योर साइन फंक्शन। ये फॉर्मूला e रेज टू x का कब यूज करना है, टाइप 2 मींस व्हाट, e रेज टू x रहेगा तब, ओके, एंड द बेसिक इंटीग्रेशन और ये यूवी रूल इतने चीजें याद रखना है, ठीक है। एंड समटाइम्स व्हाट वी हैव टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, देखो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कम से कम इतना तो भी याद रखो फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए, 2 cos a इंटू cos b is cos a plus b plus cos a minus b, cos के जगह पर अगर साइन रहा तो उसका फॉर्मूला देखिए,
2 sin A into sin B equals to what? Cos A minus B minus cos A plus B, और sin 2x रहा तो 2 sin x into cos x भूलना नहीं है, ठीक है? Are you getting? If you're understanding it, please like the video, students. I hope that you have understood this video. सबसे पहले तो basic concept clear करो, and then we will see the numericals here. Okay? It was nice teaching. Thank you so much, guys.